So practical based on buyback of shares, practical based on buyback of shares, in which what offer price to be computed का समय, which sum is this? Offer price to be computed. Okay, means offer price to be computed मतलब offer price दिया नहीं अपने को compute करना है, तो उससे related है बेटा. So see, summary balance sheet of Manish Limited, a non-listed company, as on 31st March 2012. अब एग्जाम में आपको 31st March 20, 31st March 21, 31st March 22 भी दिया रह सकता है. 31st March 12 is as follows. Liabilities are given rupees, assets are given rupees. ठीक है, चलो. शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप. इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपके पास, सिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज है. इधर आपके पास असेट्स में फिक्स असेट्स है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, एवरीथिंग इज गिवन. करंट असेट्स में इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस दैट इज 15 lakhs. ओके, नाउ सी what is given now. Keeping in view all the legal requirements, keeping in view all the legal requirements, what we have to ascertain? Ascertain maximum number of equity shares that Manish Limited can buy back, right? Maximum number of equity shares that Manish Limited can buy back. Second one, maximum price it can offer, right? So keeping in view all the legal requirement, ascertain what? Maximum number of equity shares that Manish Limited can buy back and maximum price it can offer. Assume that the buyback is carried out actually on the legally permissible terms. So see, in this question, you can easily see that there is no offer price, right? The offer price is not given. So offer price to be computed means offer price अपने को calculate करना है. देख रहे हो ना, maximum number of equity shares that Manish Limited can buy back and maximum price it can offer. कितना maximum price रहेगा? That is offer price. Assume that the buyback is carried out actually on the legally permissible terms. Record the entries in the journal of Manish Limited and prepare its balance sheet thereafter. Right? So assume that the buyback is carried out actually on the legally permissible terms. And record क्या करना है अपने को? Record the entries in the journal of Manish Limited and prepare its balance sheet. So let's do it. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब सबसे पहले देखो, मैक्सिमम ऑफर प्राइस तो दिया नहीं अपने को, तो पहले तो कंडीशंस बना लो. कंडीशन फॉर बायबैक. अब ऑफर प्राइस टू बी कंप्यूटेड में कंडीशन फॉर बायबैक क्या है, स्टेप देखा ही हमने. सो लेट्स डू इट. सो फॉर सॉल्विंग दिस सम, first of all, at the top, what? Manish Limited, company name, right? Manish Limited. Now condition for buyback when offer price is not given. When offer price is not given. So the very first one, sources. So what will be there in the sources? You can see here. It is given in the question. See, sources में आपके पास वही divisible profit and security premium. So you can see here, beta, divisible profit is there, general reserve, profit and loss, and then security premium is also there. Okay, so chalo. Come on. So first one is what? Divisible profit में general reserve. Then second, profit and loss account. General reserve, profit and loss account. General reserve is what? 10 lakhs. Profit and loss account is also 10 lakhs. Then security premiums. Security premium, that is 5 lakhs. So total now D is reserves and
surplus. That is 25 lakhs. 25 lakhs. Yes, perfect. Chalo, sources done. Then second one is after sources, second point. Sources देखो, first main amount आ गया अपना sources. This is what first main amount. Sources is what बेटा our first main amount हो गया. चलो next. After sources, second one is what 25% of own funds. %25 of own funds. What about 25% of what? Own funds. Okay. So in this 25% of own funds में सबसे पहला starting तो A, reserves and surplus, which is given above, that is 25 lakhs. Sorry, reserve and surplus कितना? हाँ, बराबर 25 lakhs. So 25 lakhs reserves and surplus. Then equity share capital. Equity share capital. So equity share capital is how much? You can see here, equity share capital. Equity share capital. That is also 25 lakhs, right? Yes. So equity share capital is also 25 lakhs. Reserve and surplus 25 lakhs, equity share capital 25 lakhs, preference share capital is not given. So get the total. So after totaling this, getting this, you will get your own funds. After adding this, what you will get? Own funds, right? So own fund is what? 50 lakhs. This is what own funds, that is 50 lakhs, right? Now what do you have to calculate, beta? 25% of own funds. D is what? 25% of own funds. Chalo. So 50 lakh ka 25% nikal. So how much will it come? Yes, 12,50,000. Perfect. So 12,50,000. Now this is what your second main amount. The main amount hoga, double underline kar dete hum log. This is what second main amount, right? First main amount is 25 lakhs. Second main amount is 12,50,000. Okay. Chalo, third one. Now third one, minimum own funds. Minimum own funds. Now for minimum own funds, the very first one will be what? For minimum own funds के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग पहले क्या करते हैं? Own funds लेंगे. What we will check here? First one is what? Your own funds. So own fund is how much? 50 lakhs. दिख रहा है आपको own fund? 50 lakhs है आपका. राइट है. फिर उसमें से माइनस क्या करना पे वो लेस 50% of debt. Less what? 50% of debt. So 50 lakh ka 50% will be what? 12,50,000. 12,50,000, right? So now we will get what? Minimum own funds.
C, we will get what? Minimum on funds. That is 50 minus 12 lakh 50. That is 37 lakh 50,000. बराबर बेटा 37 lakh 50,000, and this is what your third main amount. This will be what? Your third main amount. Got it? Yes. 37 lakh 50,000 will be your third main amount. चलो हो गया. Now fourth step. आ जाओ. Fourth step will be what? अभी fourth step तो common अपना जो करते हैं हम लोग. Fourth में क्या करना बेटा आपने को? What we have to take? Maximum possible amount of buyback. You have to take maximum possible amount of buyback. What we have to take? Maximum possible amount of buyback. और वो क्या होगा बेटा? आपको पता है? What will be? Least of. Yes, very good beta. Least of what? Above 3 amounts. Right? So least of above 3 amounts. Yes, perfect. Very good. Well done beta, well done. So least of above 3 amount is what? 12 lakh 50,000. See, this is first amount, first main amount. ये first main है, ये second main है बेटा. And ये third main. So least of above 3 amount, ठीक है, which is 12 lakh 50,000. तो दिखा देना 12 lakh 50. 12 lakh 50,000. That's it. So maximum possible amount of buyback is 12 lakh 50,000. Got it? Clear? Now next, fifth one. अभी बेटा फिफ्थ वन विल बी व्हाट? अब लीस्ट अमाउंट तो आ गया. अब फिफ्थ में क्या करते हैं? पहले क्या करो? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी ले लो. 25% ऑफ व्हाट? पेड अप इक्विटी. राइट है? 25% ऑफ व्हाट बेटा? पेड अप इक्विटी. राइट? चलो अब 25% ऑफ पेड अप इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आ जाओ. पेड अप इक्विटी कितना है? 25 लाख है. उसका 25%. सो 25 लाख का 25% विल कम. यस, 6,25,000. 6,25,000. Perfect. Right? So 25% of paid up equity, that is 25 lakhs का 25%, that is 6,25,000. Now maximum number of shares निकल. What? A maximum number of shares. So how to calculate maximum number of shares? This 6,25,000 divided by what? Face value per share. तो per share का face value कितना था बेटा? 10 था ना आपका. ये देखो, see here. You can see here. Equity share at the face value of rupees what? 10 each. बराबर है बेटा? है ना इधर 10, right? So face value is what? 10. चलो. So face value आपका है इधर बेटा 10. So आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिल गया? 6,25,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 62,500 शेयर्स. यस और नो? So 62,500 shares. Maximum number of shares will be 62,500. Okay. Now, आ जाओ sixth one. अभी क्या करना है अपने को? निकाल लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस.
मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस इज व्हाट? तो वो निकालने के लिए सिंपल अपना फॉर्मूला यूज कर लो। मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस निकालना मींस मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक कितना है? 12,50,000। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 62,500। दैट्स इट, डिवाइड इट, यू विल गेट द ऑफर प्राइस, राइट? तो चलो, सो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस के लिए आपको क्या करना है? दैट इज 12,50,000। जो लीस्ट ऑफ अबव 3 अमाउंट आता है 12,50,000, उसको डिवाइड कर दो किससे बेटा? यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है, दैट इज 62,500 शेयर्स। दैट्स इट, बराबर है 62,500। ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक जो आया फोर्थ वाले में आपने निकला, उसको डिवाइड कर दो आप किससे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। दैट्स इट, ठीक है? सो आपको मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा फाइनली? इधर मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस कितना आ जाएगा बोलो? 20 रुपीज। यस, परफेक्ट, 20 rupees. That's it. So maximum possible offer price is what beta? 20 rupees. Clear है? So maximum possible offer price that is 20 rupees. That is कैसे है आपका? Least of above 3 amounts जो कि आपको ऊपर दिया है, बराबर है, divided by what? Divided by, yes, perfect, correct, right? Divided by maximum number of shares. So you got your offer price. Offer price is rupees 20. Okay, चलो नाउ नेक्स्ट, अभी आ जाओ मनीष लिमिटेड में जर्नल एंट्री। सो मनीष लिमिटेड, मनीष लिमिटेड जर्नल, जर्नल एंट्रीज, राइट? सो आपका कंडीशन फॉर बायबैक हो गया। नाउ जर्नल एंट्रीज, चलो डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, फिर इधर आपका लेफ्ट number and particulars. So number, then particulars, then आपका LF, debit rupees and credit rupees, बराबर है? Journal entries, number, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. चलो, so the very first one, फर्स्ट एंट्री पता ही है बेटा आपको, बराबर है? तो सबसे पहले देखो, कभी भी आपको पता है ना, अगर इक्विटी शेयर नॉर्मल, अगर इक्विटी शेयर का कुछ भी अगर समझो पार्टली पेड अप है, कॉल विल करना है, कुछ फुल्ली पेड अप करना है, तो वो करना है। लेकिन इधर तो आपका इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है ना, ये देख रहे हो आप, इक्विटी शेयर पूरा 10 इंच फुल्ली पेड अप है। अगर समझो कुछ कॉल बाकी रहता है, 8 रुपीज पेड अप होता है, 2 रुपीज का कॉल बाकी रहता, तो आप कॉल करते, आप कॉल करके पहले शेयर फुल्ली पेड अप करते, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो अपना स्टेप क्या आता है फिर? सोर्सेस। सोर्सेस मतलब कुछ फ्रेश इशू है क्या, कुछ सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है क्या आपका, तो कुछ है क्या? पूरे क्वेश्चन में देखा हमने, किधर भी कुछ भी नहीं है, राइट? ओके, सो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अगर सोर्सेज नहीं है तो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। चलो, व्हाट यू हैव टू डू? रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। और रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक मतलब क्या? आपको क्या देना है बायबैक पे? इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा बेटा, ठीक है? अब देना कितना है, आ जाओ, कितना शेयर? आप देखो, ऑफर प्राइस है 20,
मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हो? 60 to 500, ठीक है। तो 60 to 500 शेयर्स इनटू, बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में वी हैव टू राइट व्हाट फेस वैल्यू एंड विच इज 10। तो कितना हो गया? 6,25,000, बराबर है। नेक्स्ट, अभी क्या करना है आपको? यस, प्रीमियम ऑन बायबैक। व्हाट बेटा? प्रीमियम ऑन बायबैक। चलो, सो प्रीमियम कैसे? प्रीमियम बेटा 20 रुपीज है ना, 20 में 10 तो आपका फेस वैल्यू हो गया, 10 रुपीज तो फेस वैल्यू, तो अदर बैलेंस 10 रुपीज इज व्हाट? प्रीमियम। सो प्रीमियम, प्रीमियम ऑन व्हाट बेटा? बायबैक। Premium on buyback of shares account debit, right? That is 60 to 500 into what? कितना है प्रीमियम? वही सेम 20 है, तो 10 का अपना क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10 का प्रीमियम। चलो, तो 6,25,000, ठीक है। टू देना किसको है? टू whom it is payable? To equity shareholders, to equity shareholders account. That is 60 to 500 multiplied by 20, right? So 60 to 500 multiplied by 20 will come 12,50,000. That's it. नरेशन में दिखा देने का, being amount payable on buyback of 60 to 500 equity share of 10 each at a premium of 10 each. Simple. चलो, बराबर है बेटा। चलो सेकेंड वन, अभी सेकेंड वन में क्या हो जाएगा? ये हो गया रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल आ गया आपका, बराबर है बेटा। अब रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल के बाद क्या करना है आपको? सीआरआर क्रिएट करना है। सीआरआर, बराबर है क्या? व्हाट यू हैव टू क्रिएट? सीआरआर, बराबर है। सीआरआर आपको क्रिएट करना। तो चलो, सीआरआर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना है। डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास क्या है? आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप, एंट्री वाइज, स्टेप वाइज। तो देखो, डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास जनरल रिजर्व है और पीएनएल है। तो जनरल रिजर्व यूज करते हैं बेटा, 10 लाख का बैलेंस है, और आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना बेटा? सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है? टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का? 625। तो चलो, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में तो 10 लाख का बैलेंस है ना, आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व को यूज कर लो। जनरल reserve account will be debited to what we have created? CRI, that is capital redemption reserve. General reserve account debit to capital redemption reserve, that is 6,25,000. we can easily create it, easily 6,25,000. That's it, बराबर। चलो, सो ये जनरल रिजर्व भी क्रिएट हो गया। आ जाओ, अब देखो, सॉरी, सीआरआर भी क्रिएट हो गया आपका आउट ऑफ जनरल रिजर्व। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, अभी क्या करो? पेमेंट कर दो, ठीक है। चलो, पेमेंट कर दो, या प्रीमियम एडजस्ट करना है तो प्रीमियम भी एडजस्ट कर सकते हो। प्रीमियम एडजस्ट करोगे किधर से? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, बट प्रीमियम एकदम लास्ट में कर देना, आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक एडजस्ट करो। चलो, अभी थर्ड वन इज व्हाट? पेमेंट। सो पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर, सो इक्विटी
shareholders account will be debited. What? Equity shareholder account will be debited to what? Yes, to bank. To bank account. बराबर है. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. चलो कितना पे करना है अपने को इक्विटी शेयर होल्डर को? 12,50,000. 12,50,000. 12,50,000. Right? So we have to pay 12,50,000. Now fourth one. अभी फोर्थ वन क्या? चलो क्रिएट करते हैं प्रीमियम. प्रीमियम एडजस्ट करते हैं तो कम. सो प्रीमियम ऑन बायबैक. अभी ये प्रीमियम एडजस्ट करना है आफ्टर बायबैक में. सो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या बेटा? डेबिट. तो एडजस्ट करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा. सो टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. राइट. डेबिट किधर से करोगे आप? सबसे पहले प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज? सिक्योरिटी प्रीमियम. अच्छा पहले प्रीमियम का बैलेंस कितना है अपने को? कितना एडजस्ट करना है? 625. चलो इधर दिखा दिया. 6,25,000 आपको एडजस्ट करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू यूज इट. व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम. चलो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड. पहला तो सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा बेटा. बराबर है. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दो. कितना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? सी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा अपना? 5 लाख. दिख रहा है ये 5 लाख. ठीक है. चलो सो 5 लाख. ठीक है. चलो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया डेबिट. फिर जनरल रिजर्व एडजस्ट करो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया. अब जनरल रिजर्व से यूज करना है. तो जनरल रिजर्व से आप कितना बैलेंस बचा? 625 माइनस 5 लाख 125. और जनरल रिजर्व में 10 लाख था. 10 लाख में से कितना यूज हुआ सिर्फ जनरल रिजर्व में? 625. तो उधर बैलेंस बचा है ना, काफी सारा बचा है. बराबर है कि नहीं? अभी अपने पास जनरल रिजर्व में काफी बैलेंस है. देखो पहले 10 लाख था, 10 लाख, उसमें से 625 आपने सीआरआर के लिए यूज किया तो बचा कितना? 3,75,000. तो बहुत सारा बैलेंस है ना. 3,75,000 में से बराबर 3,75,000 जनरल रिजर्व में है और अपने को कितना चाहिए सिर्फ इधर? 1,25,000. तो वी कैन इजीली यूज इट. दैट्स इट. नो वरी. बराबर है कि नहीं? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट दैट इज 5 लाख. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 125 टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. दैट्स इट. बराबर है. 6,25,000 हो गया. हो गया. डन. फिनिश. बराबर है. जर्नल एंट्री भी डन. ओके. कोई डाउट जर्नल एंट्री में? क्लियर? ओके. चलो अभी अपने को बोल रहा है बेटा बैलेंस शीट भी बनाना है. बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट बोला है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट नहीं बोला है, बैलेंस शीट बोला है. बैलेंस शीट मतलब पूरा मेन बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. देखो इधर बोला ना क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन हियर? सी प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट देयर आफ्टर. प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट. ठीक है. चलो सो बैलेंस शीट बनाते हैं. लेट्स मेक इट. सो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक. बैलेंस शीट व्हाट? आफ्टर बायबैक. ठीक है. चलो बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक में रुपीस
नोट नंबर, बताइए नोट नंबर। इधर एक छोटा सा तो सीरियल नंबर बनाना तो बना दो। ये पहले मेन बैलेंस शीट हो जाएगा, राइट। बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, क्या बेटा बैलेंस शीट क्या है, ये आफ्टर बायबैक का बैलेंस शीट बना रहे हो, बराबर है। चलो, सो नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस, बराबर है। चलो, द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बराबर है बेटा। चलो, अब उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मेट करते जाओ अपना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे पहला टाइटल हो गया आपका, फिर उसमें भी सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला होगा बेटा क्या, शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज व्हाट, शेयर कैपिटल, उसके लिए नोट नंबर 1 बनेगा। और सेकंड है आपका बी, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। Reserves and surplus, that is note number 2. First one is share capital, second one is what, reserves and surplus. Second one, shareholder fund के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, पता बेटा। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या रहेगा, बोरोइंग्स, जो भी डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो है क्या, जरा देख लेते हैं। इज इट, यस, डिबेंचर्स है, लोन है, तो बोरोइंग्स है, तो दिखा देते हैं मेन बैलेंस शीट में, मेन बैलेंस शीट में हियर, दैट इज व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या हो गया अपना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, long term borrowings, that is 10% debentures, right, 10% debentures, got it, okay, so 10% debentures है। अब देखो ये तो सिंगल ही है ना, तो डायरेक्ट आउटर में लिख दो, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, बराबर है, राइट। तो ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, 25 लाख सिंगल ही दिया है तो, और नोट्स टू अकाउंट बनाना है तो थर्ड नंबर बना के कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, सिंगल ही है तो फिर डायरेक्ट कर सकते हो, यू कैन डू इट डायरेक्टली, ओके। देन थर्ड वन इज व्हाट, शेयर होल्डर फंड हो गया बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ करंट लाइबिलिटीज, व्हाट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, बराबर है। अब करंट लाइबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा बेटा, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, राइट। चलो, अब ट्रेड पेबल्स में आ जाओ, है ना, ट्रेड पेबल्स है, देखो इधर अपना क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बराबर है। अब इसके लिए नोट बना दो, क्योंकि देखो सिंगल नहीं है, 2 आइटम्स आर देयर, तो नोट में दिखा देना। तो इसके लिए
मेक हियर नोट्स. नोट नंबर 3. देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए फिक्स बनाने, फिक्स नोट टू अकाउंट फिक्स 1 and 2. बाकी अदर्स के लिए क्या करना है, अगर सिंगल आइटम है ना सिंगल, तो नोट टू अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है. हाँ 2 और मोर देन 2 या एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है तो बना देने का नोट्स टू अकाउंट. मतलब एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ है तो आप नोट्स टू अकाउंट बना देने, अदरवाइज नो नीड. ओके, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज डन. आ जाओ अभी टोटल कर लेते हैं. टोटल कितना टोटल, तो टोटल तो अभी आएगा नहीं क्योंकि सब अमाउंट चाहिए ना अपने को, नोट नंबर 1 से नोट नंबर 2 नोट नंबर 3. तो जब आएगा तो देखेंगे. नेक्स्ट आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद सेकंड वन. सेकंड वन इज व्हाट, असेट्स. सेकंड वन इज व्हाट, असेट्स. अब असेट में सबसे पहला है आपका क्या, फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉन करंट असेट. असेट में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉन करंट असेट्स. राइट, नॉन करंट असेट. अब नॉन करंट असेट में पहला क्या आ जाएगा वो देखते हैं. फिक्स असेट से रिलेटेड होगा बेटा. सो यू कैन सी हियर, इधर देखो, फिक्स असेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो फिक्स असेट है वो भी नेट ब्लॉक डायरेक्टली दिया है, सिंगल है, तो नोट टू अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं है ना. ठीक है, देयर इज नो नीड टू मेक अ नोट टू अकाउंट, डायरेक्ट कर दो. तो नॉन करंट असेट में पहला क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिक्स असेट ठीक है दिमाग में रखो, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या लिखते हैं हम लोग उसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो चलो उसमें ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. राइट, सो नॉन करंट एसेट में आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया बेटा. क्लियर है, बराबर. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपका आ जाएगा क्या, जो नेट फिक्स एसेट दिया ना नेट ब्लॉक करके, सिखा देना. सो दैट इज व्हाट, नेट ब्लॉक डायरेक्टली. फिक्स एसेट नेट ब्लॉक दैट इज 40 lakhs. देखो इधर, ठीक है. तो आ जाओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डायरेक्टली इट इज गिवन व्हाट बेटा, नेट ब्लॉक. व्हाट, नेट ब्लॉक. ठीक है, राइट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट ब्लॉक डायरेक्टली दिया है, अमाउंट सिंगल अमाउंट है, तो डायरेक्टली हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो. 40 lakhs प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट ब्लॉक, दैट्स इट. चलो नेक्स्ट बी. अब क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. चलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. चलो आ जाओ देखते हैं. इज इट, यस अकेला ही है, सिंगल आइटम, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में. उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली 15 lakhs. राइट, 15 lakhs बराबर है ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके. इधर ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ट्रेड बराबर ट्रेड इन्वेस्टमेंट. क्लियर है. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डन. फिर सेकंड, चलो नॉन करंट असेट में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया बेटा, जिसमें नेट ब्लॉक, फिक्स असेट का नेट ब्लॉक है, बराबर है डायरेक्टली. अच्छा दिखाना है, दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं. इधर ना फिक्स असेट करके ऐसे नेट ब्लॉक दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर है. लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका ये सब हेडिंग होगा.
नॉन करंट असेट में याद रखना, इधर फिक्स असेट मत लिखना। तो फिक्स असेट अगर आपको शो करना है तो दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, नेट ब्लॉक करके लिख सकते हो। बट ये जो हेडिंग है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होना चाहिए एज पर न्यू, बराबर है, जो अमेंडमेंट है। चलो, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया बेटा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अपना क्या हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 15 lakhs। ओके, चलो अब सेकंड आ जाओ, नॉन करंट एसेट भी डन, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन, एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डन। नाउ सेकंड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, चलो करंट एसेट्स में पहला क्या आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट वन? So first one will be what? Cash and cash equivalents. अभी करंट एसेट में देखो, अभी देख लो आप इधर क्या दिया है करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में डायरेक्टली आपके पास करंट एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस है 15 lakhs, बराबर है, और लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है, बराबर है, लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेंट्री है नहीं आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स है नहीं, तो वो सब है ही नहीं, तो फिर दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, बराबर है। तो डायरेक्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखा दो आप पहले, कैश एंड क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बराबर है, व्हाट बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बराबर है। तो आ जाओ, देखो क्या है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इधर गया, ये देखो, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है बेटा, देखो इधर देखो, करंट एसेट में बैंक बैलेंस 15 lakhs है, बट 15 लाख में से आपने बायबैक जब भी किया तो पेमेंट भी तो किया है, 12,50,000 माइनस भी तो हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2,50,000। तो इसके लिए हम लोग नोट बना देंगे, नोट्स तो अपन बना देंगे, क्योंकि इसमें शो करना पड़ेगा ना कि किधर गया पैसा, तो शो करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, पेमेंट हुआ है कैश का तो माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्टली सिंगल कुछ नहीं दिया है, तो इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे बेटा। तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट नंबर 4 और दिस नोट्स टू अकाउंट नंबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट, बी 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 इज व्हाट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये देखो, ये लोन्स एंड एडवांसेस है ना बेटा, आपका लोन्स एंड एडवांसेस ये तो डायरेक्टली दिया है, बराबर है, 5 lakhs डायरेक्ट, वो डायरेक्टली दिखा दो। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, करंट असेट में 35 लाख में से 15 लाख का तो बैंक बैलेंस है, तो बचा कितना, 20 lakhs, रिमेनिंग इज व्हाट, 20 lakhs। तो रिमेनिंग 20 lakhs आपका क्या होगा, अदर करंट असेट्स, नॉर्मल सी बात है ना, करंट असेट्स में 15 लाख अगर बैंक बैलेंस है तो बचा 35 में से 15 माइनस कर दिया तो 20 lakhs, तो दैट 20 lakhs it, that 20 lakh is what, other करंट असेट्स, बराबर। चल आ जाओ, तो अदर करंट असेट तो एकदम लास्ट में लिखेंगे, पहले इधर आ जाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स एंड, देखो ये जो लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहा है आपको इधर, ये वाला, ये किस में है बेटा, कौन से हेडिंग में है, ये करंट असेट्स की हेडिंग में है ना बेटा, राइट। तो अगर करंट असेट्स की हेडिंग में, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ही होगा, दैट्स इट। तो दिखा देना, करंट असेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, कुछ है नहीं, डायरेक्टली सिंगल अमाउंट है, तो 5 lakhs दिखा दिया आपने। बचा क्या, फाइनली अदर करंट असेट्स।
अदर करंट असेट्स। अब बेटा अदर करंट असेट भी नॉर्मल ही है ना, एकदम एकदम कॉमन है। 35 lakhs था करंट असेट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, उसमें से क्या किया आपने, 15 lakhs वाला तो बैंक बैलेंस था, वो साइड में कर लो, तो बचा कितना, 20 lakhs अदर करंट असेट्स हो गया। इसके लिए भी आपको नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी डायरेक्ट ही है ना। 35 lakhs था, उसमें से 15 lakh बैंक बैलेंस, तो बचा कितना, 20 lakhs is what your other current asset, simple. So 20 lakhs is your other current assets. Clear है? 20 lakh is what your other current assets. That's it. Okay, got it? Clear है? चलो, और फाइनली आ जाएगा आपका टोटल। फाइनली आपका हो जाएगा टोटल। चलो अब नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, चलो आ जाओ, लेट्स मेक अ नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स, नॉर्मल फॉर्मेट, रुपीस कॉलम बराबर, नंबर, सो नंबर, इधर पर्टिकुलर्स लिखो या नोट्स टू अकाउंट लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। नोट्स टू अकाउंट लिखना है तो नोट्स टू अकाउंट ही लिख दो, बट ऊपर लिखा है ना नोट्स टू अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स एंड रुपीस, ठीक है, बराबर है बेटा। चलो आ जाओ, सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट अपने को किसका बनाना है, शेयर होल्डर, किधर है, शेयर कैपिटल, दिस वन, शेयर कैपिटल। So the very first one is what, for share capital. Share capital. First one will be for share capital. ठीक है, बराबर है बेटा। चलो अभी शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले, ठीक है, शेयर कैपिटल बनाओगे आप। अब शेयर कैपिटल में आ जाओ, क्या करोगे आप, वही पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्या बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल ही है ना, प्रेफरेंस तो है ही नहीं आपके पास, है क्या प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं है ना, दैट्स इट, बराबर है। तो डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर आप पता है ना क्या कर सकते हो, ऑथराइज्ड भी दिखा सकते हो, फिर इशूड सब्सक्राइब पेड अप ऐसा भी कर सकते हो, बट ऑथराइज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आपको अगर दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है, ऑथराइज दिखाना है आपको, बोलो ऑथराइज्ड, ऑथराइज है नहीं क्वेश्चन में, बट दिखाना है, क्या दिखाना है, तो चलो ठीक है दिखा दे। तो इधर शेयर कैपिटल में, बराबर है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या बेटा, ऑथराइज्ड दिखा दो, ऑथराइज्ड कैपिटल, बट ऑथराइज्ड कैपिटल है नहीं, इसलिए डैश 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 डैश, मतलब डैश डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस, फेस वैल्यू तो पता ही है बेटा, रुपीस कितना है अपना, 10 each, राइट, डैश डैश ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 each, तो ऑथराइज नहीं है, इसलिए इधर भी अमाउंट में डैश डैश आ गया, दैट्स इट। चलो अब ऑथराइज्ड के बाद अपना क्या आ जाएगा, यस, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, बराबर है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो वो तो कॉमन हो जाएगा, issued, subscribed and fully paid up shares,
issued, subscribed and what बेटा fully paid up shares. चलो अब इसमें कितना शेयर्स होगा, बराबर है, तो वो देखने के लिए आप आ जाओ. अब आपको देखना है, इधर देखो, तो इक्विटी शेयर में कितना शेयर्स था पहले से, 25 lakhs डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 2,50,000, बराबर है बेटा, राइट. बट 2,50,000 में से बायबैक कितना हो गया, 62,500 शेयर्स बायबैक हो गया, तो उतना शेयर कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, देखो इधर, ये 2,50,000 कैसे आया पता चला ना, 25 lakhs फेस वैल्यू 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 2,50,000 शेयर्स. ठीक है, आ जाओ. और 2,50,000 शेयर्स था, उसमें से कितना शेयर बायबैक हो चुका है, बॉट बैक 62,500 शेयर कैपिटल बायबैक कर लिया कंपनी ने, तो उतना शेयर कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगा ना बेटा, उतनी लायबिलिटी तो कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी. सो आ जाओ, तो इधर कितना होगा, करो 2,50,000 माइनस 62,500 कितना आ रहा है शेयर्स, ओके 187,500. ओके 187,500 इक्विटी शेयर्स of rupees what, of rupees 10 each. 187,500 equity share of rupees 10 each, बराबर है, 187,500 equity share of rupees 10 each. तो 187,500 into 10 किया तो कितना आ गया बेटा, 18,75,000. और इधर ब्रैकेट में हमने दिखा दिया कैसे आई है, शो कर दो इधर, बराबर है, ये आया कैसे, तो इधर मैं सिर्फ समझने के लिए आपको दिखा देता हूँ. 2,50,000 शेयर्स था, आउट ऑफ विच 62,500 बॉट बैक हो गया, बराबर है, दैट्स इट, सिंपल, राइट. चलो तो हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अपना आ गया, तो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट डन. अब ये शेयर कैपिटल आपका इधर शो कर देना, कितना आया, 18,75,000 इज द शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, 18,75,000. ठीक है, चलो अभी सेकेंड नोट्स टू अकाउंट किसका बनाना है, रिजर्व एंड सरप्लस. चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकेंड नोट पर रिजर्व्स एंड सरप्लस. नोट टू अकाउंट में सेकेंड वाला रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चों सबसे पहला आ जाएगा व्हाट, सबसे फर्स्ट आ जाएगा बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अब बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो आपको पता है किधर से क्रिएट हुआ है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व. तो दिखा देना खाली इधर चाहिए तो ऐसे नीचे करके दिखा दो, या ब्रैकेट में दिखाना है तो ब्रैकेट में दिखा दो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व. तो सीआरआर आपका जनरल रिजर्व से आया कितना, 6,25,000, बराबर है, मच इट इज 6,25,000 ही ट्रांसफर हुआ था ना बेटा अपना, बराबर. तो सीआरआर आपका ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व दैट इज 6,25,000 है, शो इट हियर. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट रिजर्व कौन सा था अपना, सिक्योरिटी कैपिटल. देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, फिर सीआरआर के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम है कितना, अब उसमें देखो प्रीमियम में ओपनिंग बैलेंस भी था ना अपना, तो चलो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो इधर देखो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस बेटा सी हियर
opening balance, security premium 5 lakhs. Opening balance is what? 5 lakhs. So opening balance is given, that is 5 lakhs. इधर में दिखा देता हूं मैं. अब इसमें से आपने प्रीमियम ऑन बायबैक, भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों यूज किया आपने? प्रीमियम ऑन बायबैक सेट ऑफ करने के लिए. तो लेस इसके लिए यूज किया आपने प्रीमियम ऑन लेस व्हाट बेटा? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. बराबर है? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज 5 lakhs. इधर आ गया नील. बराबर है? तो ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का फंडा. नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद नेक्स्ट आ जाओ जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व. चलो अभी जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस, राइट? चलो ओपनिंग बैलेंस था जनरल रिजर्व का कितना बेटा? ये देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज व्हाट? 10 lakhs. यू कैन सी हियर 10 lakhs. बराबर है? ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज व्हाट? 10 lakhs. बराबर. अब ओपनिंग बैलेंस में से आपने कहां जनरल रिजर्व किधर किधर यूज किया वो माइनस कर दो. तो देखो, आपने पहला तो जनरल रिजर्व CRR क्रिएट करने के लिए यूज किया. बराबर है? दैट इज ट्रांसफर टू व्हाट? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ट्रांसफर टू CRR कितना? 6,25,000. चलो ब्रैकेट में डाल दिए 6,25,000. फिर और किधर यूज किया ट्रांसफर टू CRR के बाद? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए. प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए. ठीक है? चलो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स कितना था बेटा? 1,25,000. ठीक है? ट्रांसफर टू CRR एंड देन लेस प्रीमियम. देखो प्रीमियम के लिए भी यूज किया ना आपने. ये देखो आपका जनरल रिजर्व यूज हुआ है ना टू सेट ऑफ व्हाट? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. कितना यूज किया था? 1,25,000. ठीक है? तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी आपने जनरल रिजर्व का बैलेंस 1,25,000 का यूज किया. चलो तो सब माइनस करने के बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस बच रहा है कि नहीं? यस इट इज. दैट इज 2,50,000. यस परफेक्ट परफेक्ट बेटा. 2,50,000 एकदम परफेक्ट. चलो जनरल रिजर्व भी डन. बचा लास्ट में और कौन सा रिजर्व था अपना? अभी ओनली एक ही है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस. वो तो टच भी नहीं किया आपने. वो जैसा था वैसा ही है. प्रॉफिट एंड लॉस. बराबर है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये देखो इधर, सी दिस वन, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये तो सेम ही है, सेम एज इट इज. कुछ यूज भी नहीं किया आपने इसका. तो P&L बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, वो पूरा सेम ही है. ब्रॉट डाउन बैलेंस ही. ठीक है? तो खाली बैलेंस भी लिखा तो फिर भी चलेगा, कुछ प्लस माइनस करना तो है नहीं. ब्रॉट डाउन किया तो नो इशू, कर सकते हो आप. ठीक है? सो कितना आ गया? दैट इज 10 lakhs. P&L का बैलेंस आपका कितना है? 10 lakhs एज इट इज है. कुछ यूज नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया आपने. चलो सो फाइनली अपना रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आ रहा है?
ओके गया बराबर। चलो तो टोटल आ गया 625 प्लस 250 प्लस 10 लैक्स, आपका आ गया 18,75,000। दिस इज व्हाट योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। दैट्स इट। सो योर रिजर्व एंड सरप्लस इज व्हाट 18,75,000। परफेक्ट, ये आपका टोटल आ गया। दिस इज व्हाट टोटल। सो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 18,75,000। दिखा देना है रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी सेम ही आया 18,75,000 ही आया, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस भी 18,75,000। दैट्स इट। ओके चलो बचा अपना ट्रेड पेबल्स का नोट्स टू अकाउंट बनाना है, वो तो सिंपल ही है डायरेक्टली, तो इधर जगह नहीं है, इधर ही लास्ट में थोड़ा सा कर देता हूं मैं फॉर्मेट। रुपीस नंबर पर्टिकुलर्स आ जाओ। तो नोट नंबर क्या हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 इज फॉर व्हाट, इसके लिए ट्रेड पेबल्स। चलो ट्रेड पेबल्स में अपने पास क्या है बेटा, सिंपल वही अपना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कितना है अपना 15 lakhs है और बिल्स पेबल है 5 lakhs। बस टोटल 20 lakhs। अब ये 20 lakhs नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 के सामने दिखा देना। नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 बराबर है 20 lakhs। दैट्स इट राइट। फिर बचा नोट क्या, नोट नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दिखा दो इधर। अभी नोट नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो उसके लिए पहला ओपनिंग बैलेंस आपका, चलो ओपनिंग बैलेंस है कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो देखते हैं, आ जाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस किधर है आपका, यही है ना 15 lakhs ही है। दैट्स इट, बैंक बैलेंस है ना आपके पास। सो ओपनिंग बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस 15 lakhs। ठीक है चलो इधर दिखा दिया 15 lakhs। अब उसमें से माइनस कर दिया आपने लेस व्हाट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक। ठीक है कितना पेमेंट किया आपने 12,50,000। दैट्स इट। और 15 लाख माइनस 12,50,000 माइनस कर दो, कितना बचा 2,50,000। दैट्स इट, हो गया बस। अब ये 2,50,000 आप इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो कर देना 2,50,000। ठीक है अब आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। सो टैली करो, हो रहा है क्या 18,75,000 18,75,000 25 lakhs 20 lakhs कितना आ रहा है 62 lakh 82 lakh। ओके 82,50,000 ये लाइबिलिटी का टोटल है, तो असेट का भी 82,50,000 आना ही चाहिए। आ रहा है क्या, यस 82,50,000 बराबर है। इधर लिख देना, इधर 82,50,000 आएगा। आ गया, आया कि नहीं, बैलेंस शीट टैली हो गया, डन टैलीड। सो दैट्स इट, दैट्स द बैलेंस शीट, डन इट। 82,50,000 आ रहा है। असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ मस्ट बी इक्वल, कॉमन सी बात है। हो गया बेटा, यस वेरी गुड। सो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश।
नोट्स टू अकाउंट देख ही लिया आपने, सब बना के आपने इधर पोस्टिंग कर दिया, मतलब अमाउंट इधर पोस्ट कर दिया और बैलेंस शीट टैली कर दिया, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स द सम।